Hello, good morning, children, and very happy new year. Welcome back after a long vacation. Dear students, we are meeting almost after more than 10 days. Okay, last lecture was maybe on 22nd or 23rd December, and then we had a Christmas vacation. Now, again, we are continuing with the chapter 7. And you know, dosto, that we are almost at the end of this chapter, that is chapter 7 integrals. In the last lecture, we have, I think, completed up to exercise 7.11. Okay, all methods are completed, right? So now, today we are taking the last exercise of this chapter. It is a miscellaneous exercise, okay? Now, don't feel that miscellaneous means it's, in fact, it's all mixed sums, means all types of sums will be there, right from the first exercise to last exercise. But there are many good sums, many important sums as far as your examination is concerned, okay? सो हम लोग इसमें से काफ़ी सारे सम्स ट्राई करेंगे, मे बी एक या दो लेक्चर इसमें हम जाएंगे, देन वी विल गो फॉर द नेक्स्ट चैप्टर. ओके, राइट. So all of you keep your textbook open, page number 352. Okay. Some problems I will give you the hint and go for the next sum, and some I will do. Like I'm not going to discuss every sum, but whatever I feel to discuss, I will. Okay. Now the first sum, looking at the sum, we may not get the idea what to do. That's why I'm just giving you the starting. See, 1 upon x minus x cube dx. Okay, right? Now here, the first thing what I will do is take x common. So what is inside? 1 minus x square. Now there are two factors. Okay, so it will be x into 1 minus x, 1 plus x dx. Got this? Now you understood which method it is? Now it's a method of partial fraction, isn't it? ठीक है ना? So now you just go for the method in your homework. What method will do? Partial fraction. I'm just writing it. Just do partial fraction, right? So this is just a starting I've given. What method it is? In the denominator there are three factors which are linear and non-repeated. So a upon x plus b upon 1 minus x plus c upon 1 plus x. Isn't it? Okay, right. Now sum number 2. Sum number 2 is quite easy but important as well, because यूजुअली ऐसे सम बहुत कम आए हैं जिसमें हमको कॉन्जुगेट लेना पड़ता है. कॉन्जुगेट वाला सम है ये. लुकिंग एट द सम, if you don't get the idea of taking conjugate, then would be a problem how to go further. Now see the sum, 1 upon under root x plus a plus under root of x plus b. Okay. Now the first thing here, what you have to do is divide and multiply by the conjugate. Okay. So the sum as it is, under root of x plus a plus under root of x plus b. Now divide and multiply by its conjugate. You know the meaning of conjugate, no? Instead of plus, divide and multiply by the minus term, means under root of x plus a minus under root of x plus b upon under root of x plus a minus under root of x plus b dx. ठीक है? Got this? Right. अभी देखो what happens in the denominator. In the denominator क्या हो रहा है? It is something like a plus b, a minus b, so a square minus b square. So under root निकल जाएगा. So it will be x plus a minus x plus b. Be careful, the bracket कर रहा हूँ because of the minus. ठीक है? And this is the numerator, just keep as it is. So it is
अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस ए माइनस अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस बी. ठीक है. नाउ व्हाट हैपन इन द डिनोमिनेटर? एक्स एक्स कट हो गया. So what remain? A minus B. But dear friends, A and B both are constant because it is dx. Only x is a variable. So A minus B क्या हो गया? Constant हो गया. Now that constant you can take it out. Okay. So what remain in the denominator? A minus B. I take it directly out of the integration term. ठीक है. And now this term. Under root means 1 by 2. Correct? So it is x plus a raised to half and x plus b raised to half dx. Okay. ठीक है. Got this? And now you have to apply the formula. Okay. What formula it is? X plus a raised to half. So it is x raised to n formula. X raised to n plus 1 upon n plus 1 formula. Got this? Okay. So final answer would be 1 upon a minus b into x plus a raised to 3 by 2 upon 3 by 2. Okay. So 2 will go in the numerator. 3 by 2. So 2 upon 3. I write it like this. Why keep it out? Because 3 by 2 is going to come here also. So मैंने पूरा आउट ले लिया. either you take it common or you keep it there only, no problem. Okay. वैसे अपॉन 3 by 2 था वो मैंने बाहर ले लिया है. So right now upon nothing. Then same way here also x plus b raised to 3 by 2 and upon 3 by 2. That upon 3 by 2 is taken out as 2 by 3. होप यू अंडरस्टैंड. सो इसलिए अपॉन 1 किया है मैंने. ठीक है. आई जस्ट रिड्यूस 1 स्टेप इन राइटिंग. दैट्स ऑल. ठीक है. अदरवाइज यू कैन कीप 1 मोर स्टेप फॉर द आंसर. क्लियर? सो ये हो गया हमारा आंसर. नाउ जस्ट लुक एट सम नंबर 3. नाउ इन द सम नंबर 3 दोस्तों हिंट इज गिवन बट बी अवेयर दैट बी केयरफुल. एग्जाम में हिंट देने वाले हैं नहीं. ठीक है. तो ऐसा मत समझना कि भाई ये हिंट के साथ सम आएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है. सो जस्ट सी दैट सम नंबर 3. नाउ इट्स ए इम्पोर्टेंट सम क्योंकि ये हिंट इसीलिए दिया हुआ है कि अदरवाइज विथ प्रैक्टिस यू विल अंडरस्टैंड इट. विदाउट हिंट ऑल्सो यू कैन डू इट. बट अगर हिंट नहीं दिया है और पहली बार कर रहे हो ना तो इट्स वेरी डिफिकल्ट. देयरफॉर इट इज़ इम्पोर्टेंट सम. So look at the sum. X under root ax minus x square. Okay, dx. Now according to the hint given, we just say a substitution method. What is the hint given? That let x is equal to a by t. ये हमको hint दिया हुआ है. ठीक है. Let x is equal to a by t. So we will follow the hint given and there is a second method also, dear children. वो मैं आपको लास्ट में दे दूंगा. You try it your own. ठीक है. But first I go for the sum according to the hint given. So x is equal to a by t मैंने assume किया. So assume करने से उसका डेरिवेटिव कर दो तो dx is equal to 1 upon t will be minus 1 upon t square. No. So it will be माइनस ए अपॉन टी स्क्वेयर डी टी. ठीक है. ये हो गया डेरिवेटिव. होप यू अंडरस्टैंड दिस. ठीक है. नाउ ऑल दिस यू हैव टू पुट इट ओवर हियर. तो क्या होता है देखिए. सो आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 अपॉन नाउ एक्स. एक्स मीन्स ए बाई टी इंटू अंडर रूट ax. x is a by t. So ax will be a square by t. ठीक है. Then minus x square. So minus a square upon t square. ठीक है. And dx. dx मतलब ये क्या है? माइनस a अपॉन टी स्क्वेयर डी टी. ओके. राइट.
Now just see little simplification ना, directly don't try it, just go for little simplification. वैसे यहाँ से a कट हो रहा है, so you can cut it, no problem. ठीक है, if you want to cut you can just cut it from here only, because this a in the denominator, this a in the numerator. ठीक है, right. One more thing you can see, यहाँ पे t square है और यहाँ पर t है. ठीक है, right. And this t is going to come in the numerator and this t square is in the denominator. Hope you understand मैं जो क्या कह रहा हूँ, है ना. तो ये t स्क्वायर जो है वो डिनोमिनेटर में है और ये t जो ऊपर जाएगा न्यूमरेटर में जाएगा. ठीक है, तो वो भी कट हो जाएगा, t भी. तो यहाँ से और यहाँ से ये भी कट हो गया. क्लियर, ओके. अभी आगे क्या रहता है देखते हैं. सो इज इक्वल टू इंटीग्रेशन. Now see 1 upon, now from the under root quantity something common, see a square out, a square common हो सकता है, right. So if I take a square out it will become a, no, अंडर रूट में से बाहर ले लेंगे तो वो a हो जाएगा. ठीक है, राइट. देन अपॉन t है एंड यहाँ पे अपॉन t स्क्वायर है. सो टेक t स्क्वायर एलसीएम. व्हाट यू डू, t स्क्वायर एलसीएम. ध्यान से सुनो. सो टी स्क्वायर एलसीएम, सो यहाँ पे t है, सो न्यूमरेटर में t मल्टीप्लाई होगा. ओके, सो इट विल बी a स्क्वायर टेकन आउट, सो देयर विल बी ओनली t एंड माइनस दिस a स्क्वायर इज ऑल्सो टेकन आउट, सो t माइनस 1 एंड अपॉन t स्क्वायर इज दी एलसीएम अपॉन t स्क्वायर. ठीक है, एंड इन टू, नाउ दिस इज सिंपली माइनस डी टी, माइनस डी टी अपॉन टी. हाँ सॉरी, 1 अपॉन टी स्टिल देयर है ना, एक टी बचा है. ठीक है, एंड डी टी. होप यू अंडरस्टैंड दिस. अब यहाँ से एक्चुअली मैंने एक स्टेप और रिड्यूस कर सकता था कि ये जो एलसीएम है ना, दैट एलसीएम ऑल्सो कम्स आउट एज टी. सो यू कैन डायरेक्टली राइट इट, नो प्रॉब्लम. हाँ, सो इट विल बी ए अपॉन टी, ये टी भी बाहर निकल गया, टी माइनस 1 एंड इंटू माइनस 1 अपॉन टी डी टी. ठीक है ना, राइट. नाउ सी अगेन, व्हाट्स योर ऑब्जर्वेशन. फिर से ये टी कट हो गया. अब माइनस एंड अपॉन ए, दैट विल बी कांस्टेंट कमिंग आउट, तो उसको बाहर ले ले, तो बाहर क्या आ जाएगा, माइनस 1 अपॉन ए इज आउट. एंड वंस यू टेक इट आउट, देन इनसाइड इंटीग्रेशन व्हाट लेफ्ट, 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ टी माइनस 1 डी टी. सो नाउ सी इट इज अ सिंपलर फॉर्म टू इंटीग्रेट. ये कितना पावर है, t minus 1 raised to half, but in the denominator. So if you take in the numerator, it will be minus half, correct. So minus 1 upon a integration t minus 1 raised to minus half. ठीक है ना, right. Now take the formula, x raised to n plus 1 upon n plus 1 formula. So it will be minus 1 upon a, t minus 1 raised to minus half plus 1, so it will be plus half upon half. Actually this half will go in the numerator, so 2 हो जाएगा ऊपर. ठीक है ना, got this, plus c. Hope you understand this. And the 2 take up, and then t you have to replace by original variable. So t will be what, t will be a upon x, isn't it. So जहाँ पर t है वहाँ पे आपको क्या लिखना होगा, a upon x, right. So finally you have minus 2 upon a into a upon x minus 1 raised to half plus c. ठीक है, right. Is that clear? Okay. Now usually ये तो हो गया आंसर, बट वन मोर स्टेप फर्दर मे बी गिवन कि यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे और अंडर रूट में लिखेंगे और जो भी होगा वो हमारा आंसर होगा. अदरवाइज ये भी आंसर है, नो प्रॉब्लम. बट एक और स्टेप अगर मुझे करना है
तो इसको मैं अंडर रूट में लिख देता हूँ और ए माइनस एक्स अपॉन एक्स, ठीक है, LCM एंड हाफ मीन्स इट इज़ अंडर रूट एन प्लस सी। सो ये हमारा हो गया फाइनल आंसर। ओके चिल्ड्रन, सो इसमें काफ़ी अच्छे अच्छे सम्स है। अब इसी का एक और मेथड है, जस्ट ट्राई करना, आई एम नॉट श्योर वेदर इट इज़ गोइंग टू कम और नॉट, बट मेरे दिमाग में एक आया है फॉर्मूला, तो मैं आपको ही देता हूँ कि ट्राई करो इस मेथड से भी। ओके, try by assuming, okay, substituting x is equal to, see it is ax minus x square, no, so x is equal to a sin square theta, ऐसा मेरे एक दिमाग में आ रहा है, ऐसे ट्राई करना, जस्ट राइट, ओके, इन अ होमवर्क, ठीक है। इसका आप डेरिवेटिव करोगे तो इट विल बी, 2 विल बी कमिंग फॉरवर्ड, सो a इंटू 2 साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा, है ना, चेन रूल। एंड ऐसे यूज़ करके देखना अगर हो रहा है, देन इन द नेक्स्ट लेक्चर लेट मी नो कि भाई सर हुआ कि नहीं हुआ। मेरे ख्याल एक दिमाग में एक ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन आया हुआ है, ठीक है, राइट। सो जस्ट ट्राई दिस एज ए इन अ होमवर्क, ठीक है ना। होप यू अंडरस्टैंड दिस, एक बार ट्राई कर लेना। नाउ we'll go for the next sum, okay, just see in the textbook. Now fourth sum, okay, ये भी IMP है। सी मैंने बोला था लास्ट एक्सरसाइज में ऑल रिपीट मेथड सम्स है, बट मेनी सम्स आर important sums. Now the sum is integration 1 upon x square into x raised to 4 plus 1 whole raised to 3 by 4 dx. Okay, ये है sum 3 by 4 it is. Now for this I just give a note that all in the textbook you just see the example, a similar type का है, not exactly but example number 38 देखना आप, ठीक है। You just look at example number 38, तो उसमें जो किया हुआ है उसी टाइप का, सिमिलर टाइप का यूज़ यहाँ पर भी है। जस्ट सी व्हाट टू डू, I is equal to integration here x square into, now from this bracket जैसे एग्जाम्पल 38 में किया है ना, उसी तरह से फ्रॉम हियर टेक x रेज टू 4 कॉमन। हाँ, सो ये थोड़ा टिपिकल हो गया, राइट, ऐसे हमारे दिमाग में आएगा नहीं, सो ये ध्यान में रखना है। सो x रेज टू 4 कॉमन, बट देर इज अ पावर 3 by 4, so when you take x raised to 4 common, be careful to take the power 3 by 4 also, okay, right, and so x raised to 4 common, raised to 3 by 4 also because power is there. So अभी अंदर क्या रहेगा, यहाँ पे x raised to 4 बाहर आ गया, so 1 plus 1 upon x raised to 4 raised to 3 by 4 dx, ठीक है, okay, right, got this. So now from here x raised to 4 raised to 3 by 4, so 4 4 cut, so it is x cube, so x square into x cube मतलब क्या हो गया, x raised to 5 हो गया, so that we will write down, so 1 upon x raised to 5 into this bracket, that is 1 plus 1 upon x raised to 4 raised to 3 by 4 dx. Okay, clear, right. And now the important thing, why this sum is important is not only the beginning is a little bit difficult, कुछ कॉमन निकालना है, और दूसरी बात इसका सब्स्टिट्यूशन,
ओके अब सब्स्टिट्यूशन जो है से जस्ट लुक एट द एग्जाम्पल 38 सेम टाइप है. सो एग्जाम्पल 30 इसी तरह से यहाँ पर भी सपोज अभी यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन में ये जो पूरा ब्रैकेट है 1 प्लस 1/x⁴ को पूरे को हम t सपोज कर लेंगे. से इट इज t. ओके राइट. So once you take this as t and now you take a derivative of it. Okay right. So now what will be the derivative? 1 ka 0. Now this is x⁻⁻⁴, right? x⁻⁻⁴. So its derivative will be -4 into x⁻⁻⁵ dx is equal to dt. Got this? So now -5 you take down x⁵. ठीक है. तो अब देखो यहाँ पर x⁵ इज देयर इन द डिनोमिनेटर, तो वो हमारा आ गया. सो dx/x⁵ को सब्जेक्ट बना दो इसमें से. सो dx/x⁵. सी dx/x⁵ विल बी रिप्लेस बाय व्हाट? dt/-4. नो -4 इस तरफ जाएगा. सो इट विल बी -1/4 dt. ठीक है ना? Got this? Right. So now change the variable. So you have I is equal to integration. Now see dx/x⁵ पूरा ये हो जाएगा वो, और नीचे 1 what? This is t, no? So t⁻³ 1/t⁻³ into dx, and dx is this -1/4 dt. Correct? So that -1/4 will be out. t⁻³ को न्यूमरेटर में ले लो. That I am writing on the next page. Okay. So it will be -1/4 integration t⁻³ dt. Got this? Okay. Now just apply the formula x⁻n+1/n+1. So it is -1/4. Okay. And t⁻³ plus 1 upon -3/4 plus 1. ठीक है. So take LCM, -3/4 plus 1. So it will be -1/4. Isn't it? Sorry, plus 1/4. Okay. यहाँ पे denominator पर also 1/4. So -1/4 into t⁻⁴ upon 1/4 plus c. So यहाँ से क्या हो गया अभी? ये 4 तो गया. Okay. So it is -t⁻⁴ plus c. ठीक है ना? So you got the answer, but be careful, t को सब्स्टिट्यूट करना है. So t हमने किसके लिए लिया हुआ था? वो यहाँ पे रिप्लेस कर दो. So which is equal to, it will be 1 plus, so minus of 1 plus 1/x⁴, that is t⁻⁴ plus c. So this is our final answer. Okay friends? ठीक है ना? Right. So जैसे हमने, hope you understand the fourth sum. अगर आप fourth sum समझे हो ना ठीक से, then sum number 5 is also I think the same type, almost same type. Okay. So sum number 5, I am not doing the full, I am just giving you the hint. Sum number 5. Okay. Just see उसका starting क्या होगा. The sum is like this: 1/x⁴ plus x⁻⁴ dx. ठीक है. Right. Now the first thing what we will do is, जैसे ऊपर के सम में किया ना, ऐसे ही यहाँ पर भी you have to take x⁻. नाउ से ये थोड़ा सा टिपिकल टाइप का सम है. एक
क्या करेंगे हम, जस्ट सी, इसमें हम कॉमन ले लेंगे इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स रेज टू। अब इसमें एक चीज़ ध्यान में रखने वाली है, यहाँ पे दो मेथड हो सकती है, जैसे मैंने ऊपर एक अभी सम किया ना, उसमें से एक मेथड में अभी इस तरह से कर रहा हूँ देखो, दूसरी मेथड में थोड़ा सब्स्टिट्यूशन में गड़बड़ हो सकती है, इसलिए मैं ऊपर वाली मेथड में ही जा रहा हूँ। ओके, जस्ट सी, बट देर इज अ लिटल चेंज दैट यू कैन टेक कॉमन, जो मैंने बोला ना दूसरी मेथड, वो कॉमन लेके भी कर सकते हो। ओके, लेकिन मेरे ख्याल से वो कॉमन लेना ज़रूरी नहीं है, इसलिए मेथड विल बी सेम, जो ऊपर किया ना वही है, लेकिन अभी पहले मैं उसको अंडर रूट लिख देता हूँ और इसको मैं लिख देता हूँ क्यूब रूट। यू कैन राइट, अभी मैंने कुछ किया नहीं है, दिस इज स्क्वायर रूट, दिस इज क्यूब रूट। अब कुछ ऐसा सब्स्टिट्यूट करो जिससे स्क्वायर रूट भी निकल जाए और क्यूब रूट भी निकल जाए। ठीक है चिल्ड्रन, समझ में आ रहा है? सब्स्टिट्यूट, सपोज मैं x इक्वल टू टी स्क्वायर ले लूँ, देन नॉट अलाउड, नॉट वैलिड, बिकॉज उसमें रूट निकल जाता है, क्यूब रूट नहीं निकले। सपोज आई टेक x इक्वल टू टी क्यूब, देन क्यूब रूट विल गो बट स्क्वायर रूट विल नॉट गो। ठीक है, सो मुझे क्या लेना होगा, 2 और 3 का एलसीएम। 2 मतलब स्क्वायर रूट है ना, सो पावर हाफ एंड पावर 1/3, तो 1/2 1/3, तो 2 और 3 का एलसीएम क्या होगा, 6 होगा। तो यहाँ पर व्हाट वी विल डू इज दैट एज्यूम दैट x इज इक्वल टू टी रेज टू 6। ठीक है, टी रेज टू 6 ले लो, बस अब हो गया, क्योंकि इससे फ़ायदा ये होगा कि इसका डेरिवेटिव चलो जो भी आया dx इक्वल टू 6 टी रेज टू 5 dt। ठीक है, एंड अब यहाँ पर सो i इज इक्वल टू, अब dx को क्या लिखना है, ये दिस इज dx न्यूमरेटर, सो दैट इज 6 टी रेज टू 5 dt अपॉन रूट x, तो इसका रूट, तो टी रेज टू 6 का रूट होगा। ठीक है, सो होप यू अंडरस्टैंड, अंडर रूट ऑफ टी रेज टू 6, सो टी रेज टू 6 रेज टू हाफ। ठीक है ना, राइट, सो इट विल बी टी क्यूब, और यहाँ पर क्यूब रूट ऑफ टी रेज टू 6, सो टी रेज टू 6 रेज टू 1/3, तो हो जाएगा टी स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे आ गया टी क्यूब प्लस टी स्क्वायर, टी स्क्वायर कॉमन निकाल दो, ऊपर नीचे से टी स्क्वायर कट कर दो। ठीक है, एंड नाउ फर्दर यू विल ट्राई एट योर ओन, आगे एक बार देखना होमवर्क में। ओके, अगर नहीं समझ में आए ना तो जस्ट लेट मी नो इन द नेक्स्ट लेक्चर ऑल्सो। ठीक है डियर चिल्ड्रन, सो वैसे ये ऊपर वाली मेथड ही है एक्चुअली, हाँ मैंने बोला ना स्टार्टिंग में। ठीक है, ऊपर वाली मेथड से करना है ना, तो पहले से यहाँ से डिनोमिनेटर में से x रेज टू 1/6 कॉमन ले लेते हैं। क्या करते हैं, x रेज टू 1/6 कॉमन, और फिर सब्स्टिट्यूशन तो सेम ही लेना है, वॉट एवर इट इज़ नथिंग चेंज। ओके, सो यू जस्ट ट्राई दिस, एंड इवन इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम प्लीज़ लेट मी नो इन द नेक्स्ट लेक्चर। ठीक है, अभी विल स्टॉप इट ओवर हियर। ठीक है, और नेक्स्ट लेक्चर में हम विल कंटिन्यू विद द सेम एक्सरसाइज। अभी आई थिंक मिनिमम इसमें एक लेक्चर तो कम से कम शायद 2 लेक्चर भी जाएंगे। ओके फ्रेंड्स, राइट, सो विल मीट टुमारो, बट बिफोर आई लीव I just inform you that I have created in my channel, dear students, I have created the playlist chapter wise। ठीक है, अगर कोई सर्च कर रहा है मेरी चैनल तो देखेंगे मैंने चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट बनाया हुआ है। ठीक है, सो अभी तो गुजराती मीडियम का ही ज़्यादा चैप्टर्स है, सो आपका ये वाला चैप्टर जो है ना वो भी, उसका भी मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है। सो नाउ व्हेन एवर यू वांट टू सर्च, just search as a in the YouTube, you just search chapter in my channel, go and just say chapter 7 integrals, so you will get all the lectures
टुगेदर, एक ही फोल्डर में आपको मिल जाएंगे प्ले लिस्ट में, ठीक है। तो अभी क्या होता है शायद कि बहुत सारे लेक्चर्स होते हैं, 11 गुजराती मीडियम, इंग्लिश मीडियम, 12th ऑल्सो, सो इट डिफ़िकल्ट टू फाइंड आउट एंड समटाइम्स उसकी वजह से आप देखते भी नहीं हो, ठीक है ना, ढूंढने का वो, हाँ, बोर होते हो कि भाई नहीं है देखना है। सो चैप्टर वाइज यू विल गेट द प्ले लिस्ट, हाँ, सो यू विल गेट ऑल लेक्चर्स। अगर पहले के लेक्चर भी कोई मिस हुए हैं आपके, देन ऑल्सो यू कैन वॉच इट देयर, इवन द गुजराती मीडियम लेक्चर्स ऑल्सो, हाँ, यू कैन वॉच। डियर चिल्ड्रन, आई थिंक कि मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है उसमें लैंग्वेज डज नॉट मैटर मच। गुजराती का भी आप अगर देखोगे ना तो आपको ऑलमोस्ट 70% तो मिनिमम समझ में आएगा कि भाई मैं क्या कर रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ, ठीक है ना। ओके, सो दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू कि पहले के जो भी चैप्टर्स है ना, आपको रिवीजन के हिसाब से अगर आपको वो करना है, जस्ट गो फॉर दैट गुजराती मीडियम लेक्चर्स ऑल्सो, ठीक है। स्पेशली इन द कंटिन्यूटी एंड डेरिवेशन डिफरेंशिएबिलिटी, there are total 25 lectures of mine, 24 या 25 लेक्चर्स में पूरा चैप्टर 5 जो है ना, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, डिफरेंशिएशन, वो पूरा चैप्टर उसमें आपको मिलेगा, ठीक है, राइट। सो होप दैट यू गो फॉर दैट रिवीजन। तो एक बार डेरिवेटिव का रिवीजन अच्छा होगा ना तो आपका इंटीग्रेशन भी पक्का होगा, दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू, ओके, ठीक है ना। And now exam is coming in maybe most likely in the May, because CBSE का भी आ गया है तो हमारा भी मोस्टली ऐसा ही होगा, ठीक है ना। सो अभी जस्ट आलस जो भी है, लेजीनेस को छोड़ो और लग जाओ काम पे, ठीक है। सो नाउ विल मीट टुमारो, थैंक यू वेरी मच, प्लीज़ वॉच माय प्लेलिस्ट, थैंक यू वेरी मच, बाय।